Cane sugar has been the sweetener of choice for over 2,000 years. It is used in all types of foods due to its versatility. It enhances flavor, aroma, texture, and browning. It also helps retain moisture and preserve freshness. Sugar starts with sugarcane, a tall tropical grass that can grow up to 20 feet high. When it is ready for harvest, the tops are removed, leaving the base stalks behind so they can grow into the next crop. Sugarcane is a renewable resource that doesn't have to be replanted to produce a new crop. After harvesting and transporting to the mill, the sugarcane is washed and cut into shreds. Next, huge rollers crush the cane really hard. This mixture goes down to the separators, where the fibers are removed and the juice is sent on to the evaporators, which are basically huge pots heated by a furnace burning the dried sugarcane fiber. How efficient is that? This syrup is thickened by boiling off the water. Once the syrup is cool, it is time for it to be crystallized. To get crystals from the syrup, it is seeded with, well, crystals of sugar. Just a sprinkle is enough to kickstart the process. From there, it is moved into centrifuges, where centrifugal force squeezes out any remaining liquid, leaving, you guessed it, dry sugar crystals. Now the crystals are purified, decolorized, recrystallized, and dried in a large granulator. Next, they are sized by running them through a variety of screens, all to remove any impurities and make the sugar crystals just the right size and color. The end result is pure cane sugar. No bleaching or added chemicals required. Different types of sugar are created at various steps in this manufacturing process. Turbinado sugar has only been partially refined and only the surface molasses washed off. Brown sugar contains some of the surface molasses syrup, which imparts that characteristic molasses flavor. Granulated sugar is the last step in the manufacturing process. Now that the sugar is ready, there is one final step before it can be packaged and shipped. Every batch is tested in a lab to ensure that it meets the highest standard of quality. Because at Imperial Sugar and Dixie Crystals, we take great pride in turning pure cane into pure love, from our family to yours. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपने एक वीडियो देखी जिसमें हमने बताया कि कैसे हम शुगर कैन से शुगर कैन जो कि रॉ मटेरियल है उसे फिनिश गुड जो कि शुगर में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है? इंडस्ट्रीज में। कहाँ पर होती है? इंडस्ट्रीज में। तो आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्री इन इंडिया। दिस इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। तो फर्स्ट वी विल रीड द मीनिंग ऑफ इंडस्ट्री। Okay, first question is, what is the meaning of industry? Then, economic activity concerned with the processing of raw material and manufacture of goods in factories. Economic activity है जो कि raw material को कन्वर्ट करने के लिए, फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए की जाती है। नेक्स्ट है इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और मेकिंग थिंग्स, किसी भी चीज को बनाने के लिए मैन यूजेस रॉ मटेरियल। मैन क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को यूज करते हैं एंड कन्वर्ट्स इट इनटू फिनिश गुड, और उसे किसमें? फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबर, एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी। इसे हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्री। वेयर देयर रॉ मटेरियल कन्वर्ट्स इनटू फिनिश गुड, जहां पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड में, उसे हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्री। तो यहाँ पे हमने 3 डेफिनेशंस देखी। ये 3 डेफिनेशंस में आपको जो भी इजी लगे वही आपको याद करनी है। नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री इन इंडिया। कितने टाइप्स की इंडस्ट्रीज होती है इंडिया में? अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरियन ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप क्राइटेरिया के हिसाब से पहला है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट इंडस्ट्रीज दैट मीन्स इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और ग्रुप, जो कि एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप के द्वारा चलाई जाती है
और फिर है गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज दैट मीन्स ओन बाय गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, सच एज सांची प्रोडक्शन, सांची इंडस्ट्रीज। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज ओन बाय कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। एंड मिक्स इंडस्ट्रीज ओन बाय 2 और मोर ऑनर्स, जो कि 2 या 2 से अधिक ऑनर्स के द्वारा चलाई जाती है। वो क्या, वो ये सारी इंडस्ट्रीज किस क्राइटेरियन के, किन बेसिस पर डिवाइड की गई है? क्राइटेरियन ऑफ ऑनरशिप। ओके, नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी दैट मीन्स उपयोगिता। तो फर्स्ट इज बेसिक इंडस्ट्रीज एंड बी इज कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। तो फर्स्ट बेसिक इंडस्ट्रीज प्रोवाइड फीडर्स और बेसिस फॉर अदर इंडस्ट्रीज, जो कि रॉ मटेरियल को प्रोवाइड किया जाता है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज। जैसे कि अगर कोई प्रोडक्शन करना है, जैसे हमें अगर मान लो एग्रीकल्चर ही है, जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही करना है, तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन के लिए जो मशीनरी यूज़ की जाती है, जो ट्रैक्टर यूज़ किया जाता है, या जितने भी इरिगेशन से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, वो कहाँ से यूज़ किए जाते हैं? बेसिक इंडस्ट्रीज से। तो बेसिक इंडस्ट्रीज क्या है? जो कि प्रोवाइड करती है फीडर्स या फिर बेसिस, है ना, जो जिससे हम अदर प्रोडक्ट बना सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बेसिक इंडस्ट्रीज। एंड कंज्यूमर इंडस्ट्रीज विच प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स लाइक टेक्सटाइल, शुगर, पेपर। टेक्सटाइल मीन्स जो कि टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री जो कि कपड़े बनाती है। शुगर इंडस्ट्रीज जो कि हमें शक्कर प्रोवाइड करते हैं। और पेपर इंडस्ट्रीज जो कि पेपर प्रोवाइड करते हैं। ये कंज्यूमर इंडस्ट्रीज हैं जो कि डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, फर्स्ट इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज where the capital investment is 10 crores like Tata Iron and Steel Company. Tata Iron and Steel Company जहाँ पे 10 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। मीडियम इंडस्ट्रीज where the capital investment is 5 to 10 crores like leather industries. Small scale industries, capital investment is 2 to 5 crore, example Lak Industries. And fourth is cottage industries. Capital investment is nominal and which are run with the help of the family members. Nominal investment होता है और फैमिली की मेंबर के हेल्प से इसे चलाया जाता है। These cottage industries such as किसी भी टोकनी या कुछ बास्केट वगैरह बनाना, कारपेट बनाना, वीविंग करना, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे धागे बनाए जा रहे हैं। धागे से फिर यहाँ पे कपड़ा बनाया जा रहा है। कुछ प्लास्टिक के बर्तन बना के फिर उन्हें मार्केट में बेचना, ये सब किस में आता है? कॉटेज इंडस्ट्रीज में। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फिनिश गुड, हैवी इंडस्ट्रीज एंड लाइट इंडस्ट्रीज। हैवी इंडस्ट्रीज वेयर देयर मेड ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स, जहाँ पर हैवी मशीन्स बनाई जाती है, आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, जैसे ट्रक है, ट्रैक्टर है। लाइट इंडस्ट्रीज स्मॉल आर्टिकल ऑफ डेली यूज और मैन्युफैक्चर, जहाँ पर डेली यूज के आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल टॉयज एक्सेट्रा। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल के बेसिस पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। हम पढ़ेंगे सबसे पहले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। बेस्ड इंडस्ट्रीज को समझने से पहले हमें समझना होगा कि एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, द साइंस और प्रैक्टिस of farming including cultivation of the soil for the growing of crops and the rearing of animals to provide food, wool and other products। क्या है साइंस, क्या है एग्रीकल्चर का मीनिंग? ये एक तरह का साइंस है या फिर प्रैक्टिस है जो सॉइल को कल्टीवेट करती है। क्या, किस लिए? क्रॉप्स को बोने के लिए, फसलों को बोने के लिए, या फिर एनिमल को, रेयरिंग ऑफ एनिमल टू प्रोवाइड फूड, वूल एंड अदर प्रोडक्ट, जिससे हमें फूड प्राप्त होता है, वूल होता है और अदर प्रोडक्ट भी प्राप्त होते हैं। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो बताऊंगी जिसमें टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर भी दिया है। आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर रिलेटेड कौन कौन सी कंपनी, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है इंडिया में जो कि एस्टैब्लिश की गई है, सेटअप की गई है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। थैंक यू।
ज्योग्राफी कि एग्रीकल्चर होता क्या है। Agriculture is science or practice of farming, including cultivation of the soil for growing of crops and rearing of animals to provide food, wool and other products. तो होता क्या है? It's a science which includes cultivation of soil. Cultivation of soil का मतलब क्या है? जिसमें हम soil को ready करते हैं और उसके ऊपर grow करते हैं different crops. एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स, रियरिंग ऑफ एनिमल्स का मतलब क्या है? जहां हम जानवरों को पालते हैं अपने बेनिफिट के लिए, ताकि हम उनसे क्या ले सकें? फूड। नॉन वेजिटेरियंस जो होते हैं दे गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स। आप लोग मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं। वूल, जो आपके स्वेटर्स जिससे बने होते हैं, वो वूल हमें शीप से मिलता है। अदर प्रोडक्ट्स में यू कैन इंक्लूड द डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे आपको मिल्क मिलता है। सो बेसिकली क्या होता है? एग्रीकल्चर इंक्लूड क्या है? जिसमें हम सॉइल को रेडी करते हैं और उसके ऊपर ग्रो करते हैं डिफरेंट क्रॉप्स। एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स, रियरिंग ऑफ एनिमल्स का मतलब क्या है? जहां हम जानवरों को पालते हैं अपने बेनिफिट के लिए, ताकि हम उनसे क्या ले सकें? फूड। नॉन वेजिटेरियंस जो होते हैं दे गेट फूड फ्रॉम एनिमल्स। आप लोग मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं। वूल, जो आपके स्वेटर्स जिससे बने होते हैं, वो वूल हमें शीप है। कि एग्रीकल्चर वर्ड बना कैसे? अब सीखते हैं कि एग्रीकल्चर होता क्या है। होता है, देयर इज अ मिथ दैट एग्रीकल्चर मींस, आप एक इमेज बना लेते हैं ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। यू इमेजिन अ फार्मर, यू इमेजिन अ फील्ड एंड अ मैन वर्किंग देयर फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। No, agriculture is not about only growing of crops. It also include rearing of animals. जो animal husbandry होती है, जो rearing of animals होते हैं, that is also part of agriculture. Common goods required by the farm family, used without any significant surplus for sale. यानी उनकी फील्ड इतनी छोटी होती है, प्रोडक्शन इतनी कम होती है कि उससे फैमिली की नीड्स ही सेटिस्फाई कर सकती है। इसे आप सेल के पर्पस से या कमर्शियल पर्पस से यू नॉट consider this option. So this is not suitable, only fit for feeding the farm family. So that is subsistence farming. अब इसी के आगे दो types हैं, the primitive subsistence farming and the intensive subsistence farming. Let's see what are those. Primitive subsistence farming. Primitive का मतलब होता है ancient और पुराना, तो इसमें ऑब्वियसली पुरानी टेक्निक्स यूज होंगी। लेट्स सी। सो इट इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, डाउ एंड डिगिंग स्टिक्स। तो क्या होता है? ये स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे की जाती है, क्योंकि ये सबसिस्टेंस फार्मिंग है, तो इसमें बहुत ज्यादा बड़ी लैंड नहीं होती और पुराने तरह के टूल्स, यानी आपके पास कोई मशीनरी नहीं होती, कोई हार्वेस्टर्स नहीं होते, पुराने टूल्स हो, जिसे आप कहते हैं खुरपा, फावड़ा और डिगिंग स्टिक्स, खुदाई के लिए जो लकड़ियां यूज की जाती हैं, उन्हीं से इसमें फार्मिंग होती है। एंड फैमिली कम्युनिटी लेबर इसमें यूज होती है। आप मतलब किसी को हायर नहीं करते, यू डोंट हायर पीपल फॉर फार्मिंग। फैमिली एंड कम्युनिटी लेबर इज इन्वॉल्व एंड यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सिर्फ खुद की यूटिलाइजेशन के लिए ही यूज होती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स ऑन मॉनसून। इट इज प्रिमिटिव, पुराने तरह की है, सो नो आर्टिफिशियल इरिगेशन इज देयर। It depends upon monsoon. Natural fertility of the soil, यानी कि कोई आप फर्टिलाइजर्स नहीं यूज करते, कोई हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स नहीं यूज करते। नॉर्मल नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड सुटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस टू द क्रॉप ग्रोन। इसमें क्या है? जैसे अगर आपके पास बारिश ना हो तो इस तरह की फार्मिंग नहीं हो सकती। अगर नेचुरल फर्टिलिटी डिक्लाइन हो गई है लैंड की, तो उस पर फार्मिंग नहीं हो सकती। लग जाती है, जब उसमें से आप रिट्रीव कर लेते हैं जो आपको चाहिए, तो जो बचा हुआ वो सामान होता है, जो बचा हुआ आपके पास ग्रास होता है, उसको आप क्या करते हैं? बर्न कर देते हैं। अक्सर यू मस्ट हैव सीन, कई बार खेतों में से आग लगाते हैं फार्मर्स, और वो बगल में ही खड़े होते हैं, दे आर सीइंग द फायर। सो वो इंटेंशनली होता है, दे जस्ट बर्न द क्रॉप्स, दे जस्ट कट देम ऑफ, which is slash, and they burn them off before new seeds are sown. तो वो क्लियरिंग के लिए यूज होता है उस एरिया को। slash and burn farming, आप यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए ध्यान से, दिस इज द नेचुरल वेजिटेशन जो थी, एंड दिस इज आफ्टर बर्न, द फील्ड लुक्स लाइक दिस। जलने के बाद वो फील्ड कुछ इस तरह का दिखता है। यूज किया है बिकॉज इन दिस यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, ये एक स्मॉल लैंड है और इस पे कितने सारे लोग काम कर रहे हैं इतनी सी लैंड पे। सो इट इज लेबर इंटेंसिव इन नेचर। बहुत कम लैंड पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में बहुत सारे लोग काम करते हैं।
Let's see what is the formal definition. This type of farming is practiced in areas of high population pressure on land. It is labor-intensive farming where high doses of biochemical inputs and irrigations are used for obtaining higher production. होता क्या है, ये जनरली फैमिलीज में होता है कि एक फैमिली की लैंड है और पॉपुलेशन, लैंड तो उतनी ही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है फैमिली की विद ग्रोइंग ईयर्स, तो हाई पॉपुलेशन प्रेशर हो जाता है उस लैंड पर. अब वो लैंड जितनी फसल उगा सकती है ऑफ कमर्शियल फार्मर, you can see the hi-fi equipment, you can see the type of field and the acres they have. This is an overview of commercial farming. Let's see what are the characteristics of commercial farming. First one, it is done on large scale farms. जो farm size होता है, क्योंकि हम बेचने के लिए यूज करने वाले हैं for population, so farm size is comparatively very large as compared to subsistence farming. Large scale farms, it creates employment for people as compared to the subsistence farming where the only home labor or the community labor is involved. In commercial farming we generally hire people, हम लोगों को hire करते हैं farms पे काम करने के लिए, तो it creates employment. Third, it uses high doses of modern inputs. इसमें हम जितनी भी modern हमारे पास चीजें available है, जो modern scientific technologies available हैं, like high yielding variety of seeds. हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स क्या होती हैं, जिसमें हमारे पास क्रॉप जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होती है देन अ नेचुरल सीड. दीज आर केमिकली मेड सीड्स. हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स फॉर इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स. पहले क्या होता था, जिसको आप कहते हैं वीड्स, या कीड़े लग जाते हैं, पेस्ट लग जाते हैं आपकी फसल पे, तो वो खराब हो जाती है. नाउ टू प्रोटेक्ट देम, insecticides and pesticides भी यूज किए जाते हैं in order to obtain higher productivity. So these three are basically the main characteristics of commercial agriculture. यहाँ पर लिखा है यानी कि सरसों,